فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں، نئی اپڈیٹس، نئی معلومات اور ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہے۔ خون ریز لڑائی غزہ کے اندر دیکھی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی فوجیں ٹینکوں سمیت غزہ کے اندر داخل ہو چکی ہیں، لیکن مجاہدین نے اسرائیلی فوج کو بھاگنے نہیں دیا ہے۔ اس وقت غزہ میں شدید لڑائی چل رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے غزہ کی اندرونی صورتحال رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے غزہ میں جو قیامت برپا ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آج اسرائیل کی غاصب درندہ صہیونی فوج نے امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ کے مخیم جبالیہ، ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر شدید بمباری کر دی ہے۔ تو مخیم جبالیہ وہ غزہ کا ایک محلہ ہے، ایک علاقہ ہے جہاں پر تقریباً 60,000 کے قریب لوگ رہتے تھے۔ اس محلے میں درجنوں عمارتیں تھیں۔ ان عمارتوں کو تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ایک ایریا تھا۔ اس 1.5 کلومیٹر کے ایریے میں امریکہ کے بنائے ہوئے 6 بم گرائے گئے ہیں۔ جی ہاں، 6 بم، جن میں سے ہر ایک بم میں 1 ٹن بارودی مواد تھا، یعنی 6 ٹن بارودی مواد کے 6 بم اس محلے پر مخیم جبالیہ پر گرائے گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ بم گرے، چند منٹ میں وہاں جتنے گھر تھے وہ زمین بوس ہو گئے، اور وہ بم اتنے زیادہ خوفناک تھے کہ ان کی وجہ سے زمین کے اندر کئی 100 فٹ تک گہرا جو گڑھا ہے وہ پڑ گیا ہے، اور جتنے لوگ تھے وہ زمین کے اندر دفن ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ آج اس جنگ کا 25واں دن ہے، اور آج کا دن اس لیے بھی بڑا اہم ہے کیونکہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر اپنے فوجی داخل کر دیے ہیں، ٹینک داخل کر دیے ہیں۔ تو آج ایک جنگ کا نیا مرحلہ شروع کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، لیکن چونکہ اسرائیلی فوج ٹینکوں کے داخل کرنے سے فاتح نہیں ہو رہی تھی، مجاہدین نے ان کے ٹینکوں کو گھیر رکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا۔ تو جب وہ پھنس گئے تو انہوں نے نہتے لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، بمباری کر کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ مخیم جبالیہ پر جو آج حملہ کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں کم سے کم 400 مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ اکثر شہید ہو گئے ہیں، زخمی تو بہت تھوڑے سے ہیں، کیونکہ جب عمارتیں بالکل ریزہ ہو گئی ہیں، 4-5 فلور تھے بلڈنگز کے، جو وہاں پر فلیٹ تھے، تو ریزہ ہو گئے ہیں۔ زمین کے اندر لوگوں کے چیتڑے دفن ہو گئے ہیں، ان کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اتنے خوفناک اور خونی مناظر غزہ میں آج مخیم جبالیہ میں دیکھے گئے ہیں۔ یہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ اب سے کچھ دیر پہلے کی ویڈیو ہے۔ غزہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے اسرائیلی فوج نے وحشیانہ بمباری جبالیہ میں کی ہے 31 اکتوبر کو۔ جیسے ایک ہاسپٹل مامدانی پر حملہ کر کے ایک ہی وقت میں 600 لوگ شہید کیے گئے تھے، آج اسی طرح سے 400 لوگوں کو اور کئی گھروں کو اسی جگہ پر ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ، مسلمان خواب غفلت میں ہے۔ نہ سعودی عرب پر جو رنگی ہے، نہ ہی ناظرین کرام دنیا میں بسنے والے جو 2 ارب مسلمان ہیں اور ان کے جو حکمران ہیں بالخصوص 57 ملکوں کے، ان پر کچھ اثر پڑا ہے۔ OIC عرب لیگ ایک اجلاس کر چکی ہے، مذمتیں کر چکی ہے۔ آپ عرب لیگ کی بے حسی دیکھیں کہ غزہ کی صورتحال پر ایمرجنسی ہنگامی اجلاس بلائے گئے ہیں، اور وہ بھی 11 نومبر کو، یعنی آج سے تقریباً 11 دنوں کے بعد وہ اجلاس ہوگا۔ ان 11 دنوں میں نہ جانے کتنے مسلمان غزہ کے شہید ہو جائیں گے۔ 33,000 مسلمان شہید اور زخمی اور زمینوں کے نیچے دفن ہو چکے ہیں پچھلے 25 دنوں میں، اور نہ جانے اب آگے کتنے اور لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت بھی غزہ میں درندگی چل رہی ہے، بلکہ خبر آ رہی ہے کہ جو میڈیٹرین سی ہے، بحر متوسط ہے، وہاں پر ایک بحری جہاز سے رفح علاقہ ہے، وہاں پر ایک گھر پر حملہ کیا گیا ہے، کئی گھروں پر گولے مارے گئے ہیں۔ اب وہ جہاز باہری اسرائیل کا تھا یا امریکہ کا، اس حوالے سے کنفرم نہیں ہوا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل دونوں کے جہاز غزہ پر سمندر سے بھی بمباری کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جو ناروے سے تعلق رکھنے والی ایک میڈیکل ٹیم
के जो सरबराह हैं, जो गजा में मेडिकल टीम है नॉर्वे की, उससे ताल्लुक रखने वाले जो सरबराह है, उसने कहा कि अगर ये जंग रोकनी है, यानी दरिंदगी गजा में रोकनी है, तो मुसलमान मुल्कों को चाहिए कि अमेरिका, इसराइल, यूरोप का पेट्रोल और गैस बंद कर दें। ये बात नॉर्वे का एक काफिर कह रहा है कि ओ मुसलमानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे हम मजहब, तुम्हारे हम ख्याल और तुम्हारे अरब खित्ता है, ये अरबों में से भी सबसे बेहतरीन खालिस अरब इलाका है गजा का। तुम अपने मुसलमानों के लिए इतना तो कर सकते हो कि अगर लड़ नहीं सकते हो तो कम से कम पेट्रोल गैस ही बंद कर दो अमेरिका और यूरोप की, ताकि वो गजा में दरिंदगी से बात आ जाए। अफसोस ये है कि उम्मत मुस्लिमा और उनके नाम निहाद हुक्मरान ख्वाब गफलत में हैं, सिर्फ बयानात दे रहे हैं, मजम्मतें कर रहे हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय चंद ममालिक के। अब मैं आपके सामने जो गजा में क़यामत है, इसका जवाब दिया जा रहा है, इसका बदला लिया जा रहा है। आज का दिन अगर गजा के मुसलमानों के लिए एक क़यामत खेज दिन रहा है, तो इसराइल के लिए भी एक तबाही, बर्बादी, जिल्लत, रुसवाई का दिन रहा है। मेरे सामने ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं। इसराइल के कई शहरों पर मुजाहिदीन की जानिब से गजा की सरजमीन से मिसाइलों की बारिश की गई है। जी हाँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त भी मिसाइल हमले इसराइल के शहरों पर चल रहे हैं। तकरीबन आज के दिन में 400 के करीब मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर गजा से दागे गए हैं, जिनमें से अक्सर मिसाइल तिल अबीब पर दागे गए हैं, उसदूद पर दागे गए हैं, अस्कलान पर दागे गए हैं, इसके अलावा बीर सब पर दागे गए हैं और गिलाफ गजा में वाक़ यहूदी फौजी ठिकानों पर, फौजी अड्डों पर मिसाइल दागे गए हैं। कई शहरों में जाकर ये मिसाइल गिरे हैं। आज अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ रही है कि जो मिसाइल दागे हैं उन्हें इसराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम नहीं पकड़ सका है। अक्सर मिसाइल जाकर इसराइली इलाकों में गिरे हैं। तकरीबन आज 400 के करीब जो मिसाइल दागे गए हैं, इनमें 15 से ज़ायद जो यहूदी हैं वो जख्मी हुए हैं। जी हाँ, 15 से ज़ायद यहूदी जख्मी हुए हैं, उनकी कई इमारतें, कई गाड़ियाँ तबाह हुई हैं और तकरीबन 5 यहूदियों की हलाकतों की खबरें भी आ रही हैं। यहूदी मीडिया अपना नुकसान छुपाता है, सच नहीं बताता है, लेकिन मुजाहिदीन मिसाइल मारकर इसराइल को सबक सिखा रहे हैं। फिर ऐसे काम आज की जो मेरे सामने एक और बड़ी खबर है कि यमन से जो अंसारुल्लाह हूसियों की जमात है, उन्होंने ऐलान किया है कि अब हम गजा पर होने वाली दरिंदगी पर खामोश नहीं रहेंगे और अब हम इसराइल से बदला लेंगे, इसराइल को सबक सिखाएंगे। चुनाचे उन्होंने क्रूज मिसाइलों से, ड्रोन तैयारों से हमला किया है इसराइल पर और इसी तरह से एक तस्वीर नशर की गई है यमन की अंसारुल्लाह हूसी जमात की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओ इसराइल बदमाश, तुम्हारा दिमोना में वाकई जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एटमी प्लांट है, जहां पर तुम एटम बम बना रहे हो, एटमी हथियार तैयार कर रहे हो, ये हमारे मिसाइलों की जद में है। अगर तुमने गजा में दरिंदगी ना रोकी तो हम तुम्हारे एटमी प्लांट को उड़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। उसी की जानिब से कहा गया है कि ओ इसराइल, गजा में दरिंदगी बंद कर दो, हम तुम्हें सबक सिखाने आ रहे हैं अगर तुम बाज नहीं रहोगे, क्योंकि इसराइल ने धमकी दी है कि यमन हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो उसी ने कहा है कि अगर तुम हमारी तरफ आए तो हम तुम्हारा दिमोना में वाक़ई जो न्यूक्लियर प्लांट है, इसे मिसाइलों से, ड्रोन तैयारों से उड़ा देंगे, फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं है। चुनांचे यमन की जानिब से इस जंग में बाकायदा शिरकत का ऐलान कर दिया गया है और अब नाज़रीन किराम, ये जंग एक आलमी जंग बन रही है और हालात अब बदस्तूर मज़ीद ख़राब होंगे। आज की मेरे सामने एक और बड़ी खबर है। ये खबर बड़ी अहम खबर है कि इसराइल ने गजा के खिलाफ, फ़लस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए किराए की जो जंगजू हैं, किराए के जो मलेशिया हैं, उनको पैसे देकर जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। चुनांचे PKK, YPG नामी जो शाम और इराक में कुर्द बागियों की तंजीमें हैं, उन्हें इसराइल ने गजा में लड़ने के लिए पैसों के इवज़े भर्ती करने का ऐलान किया है। चुनांचे इस हवाले से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रफ़ाइल शल्मो नामी एक यहूदी है जिसका प्राइवेट मलेशिया भर्ती करने का इदारा है, उसने ऐलान किया है कि अब शाम से और इराक से किराए के जंगजुओं को लड़ने के लिए जमा किया जाएगा। चुनांचे बताया जाता है कि हर शख्स को माहाना $2,370 दिए जाएंगे, 9,000 शेकल दिए जाएंगे, $2,370 बनते हैं, जो इसराइल की मदद के लिए लड़ेगा। तो यानी अब बाहर की दुनिया से किराए के जंगजुओं को पकड़ कर लड़ने के लिए इसराइल
ला रहा है। और इसराइल ये खुद नहीं कर रहा है, बल्कि इसराइल के पीछे पूरी सलीबी दुनिया, पूरी यहूदी दुनिया, पूरा मगरब साम्राज्य निजाम है जो मुसलमानों को मिटाने के लिए, गजा को मिटाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए, मुसलमानों को गैरत करनी चाहिए कि जब यहूदी सलीबी दुनिया भर से किराए के जंगजुओं को पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं, तो क्या तुम अपने गजा के मुसलमान भाइयों की मदद के लिए जरा भी हिम्मत नहीं कर सकते हो? काम अब मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने लगा हूँ। इंतहाई अहम खबर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैबी मदद और नुसरत इस जंग में फलस्तीनी मुजाहिदीन देख रहे हैं। और ये जो गैबी मदद है, ये जो अल्लाह की मदद और नुसरत है, इसका एतराफ़ यहूदी भी कर रहे हैं। चुनांचे इसराइल का अखबार है, अबरानी ज़बान में यदीयोत आहरानोत, बड़ा पुराना और बड़ा कदीम मशहूर अखबार है। इसे इसराइल के अबरानी ज़बान में छपने वाले अखबार यदीयोत आहरानोत में मोसाद, जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उसके साबिक सरबराह दानी यातोन ने एक मजमून लिखा है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह दानी यातोन ने एक मजमून लिखा है इसराइली अखबार यदीयोत आहरानोत में। उसमें उसने लिखा कि इस जंग में हो क्या रहा है, क्या मूसा और हारून के रब ने इसराइल के यहूदियों को तन्हा छोड़ दिया है? इसराइल की मोसाद एजेंसी का सरबराह लिखता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है। उसने कहा कि इसराइल का बनाया गया मिर्काफा टैंक तिल अबीब की इसराइल की प्रोडक्शन में, इसराइल के असलहे में सबसे दुनिया का बड़ा फखर है और दुनिया के बड़े टॉप ये टैंकों में शुमार होते हैं, जिसको बनाने पर हमने 170 मिलियन डॉलर खर्च किए। इसने कहा कि एक RPG, एक जो एंटी टैंक मिसाइल है, क्या वो हमारे मिर्काफा टैंकों को उड़ा सकता है? इसने कहा कि जमीन में फौलादी किले की हामिल, फौलादी किला नुमा जो हमारा टैंक है, क्या वो एक बम से, एक यासीन 105 जो हमास का मिसाइल है एंटी टैंक, उससे वो तबाह हो जाता है। इसने कहा कि क्या कभी किसी ने देखा है कि एक छोटी सी गोली, क्योंकि टैंक के मुकाबले में वो एंटी टैंक जो मिसाइल है वो तो एक गोली ही शुमार होगी। उसने कहा कि क्या एक गोली हमारे टैंक को लगे और जमीन फट जाए और टैंक के चीथड़े उड़ जाए और 1 टन वजनी बम की तरह एक जो RPG जो कंधे पर उठाकर मिसाइल होता है, जिसे आम हथियार में, आम हाथ में भी उठाया जा सकता है, इतना हल्का मिसाइल हमारे इतने भारी टैंक को तबाह कर देते हैं, इसकी हमें समझ नहीं आ रही है। यहूदी साबिक मोसाद एजेंसी का सरबराह लिखता है कि न जाने कौन लड़ रहा है और किससे लड़ाई की जा रही है। उसने कहा कि लगता है कि कोई छुपी हुई मखलूक है जो यहूदियों को कत्ल करने में हमास की मुजाहिदीन की मदद कर रही है। उसने कहा कि क्या मूसा और हारून के रब ने हमें तन्हा छोड़ दिया है? उसने कहा कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, इससे ये लग रहा है कि इसराइल की रियासत का खात्मा अचानक अब करीब आ चुका है। जी हाँ, ये बात यहूदियों के साबिक सरबराह जो मोसाद एजेंसी का सरबराह रहा है दानी यातोन, उसने मजमून में लिखी है। तो अल्लाह की नुसरत और मदद का इजहार अबू उबैदा जो हमास के सरबराह हैं वो भी कर चुके हैं कि हमारा एक फौजी 3 यहूदियों की जो टैंक और गाड़ियां थी उनका मुकाबला करता है। यहूदी समझते हैं कि ये पूरा लश्कर है, वो भाग जाते हैं और 3 मुजाहिद इसराइल के पूरे फौजी अड्डे को यरगमाल बनाकर लड़ाई करते हैं कई घंटे तक। हमास के सरबराह हमास की जो असली तर्जुमान है अबू उबैदा, वो कहते हैं कि हमने अल्लाह की मदद अपनी आंखों से देखी है। हम अपनी कौम को कहते हैं कि सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। हमारा पूरा यकीन है कि हम इसराइली फौज को सबक सिखाएंगे। नाज़रीन इकराम, इसराइल की जो फौज टैंकों समेत गजा में दाखिल हुई है उसका हाशर नशर किया जा रहा है। मुजाहिदीन उन पर टूट पड़े हैं। ना तो कोई इसराइली फौजी गजा की सुरंगों में दाखिल हुए हैं, ना ही उसने कोई मुजाहिदीन के ठिकाने पकड़े हैं या उन्हें शहीद किया है, बल्कि खुफिया तौर पर जिस तरह से वो दाखिल हुए हैं अब उनका हाशर नशर किया जा रहा है और इसराइली फौज वापस भागने की फिक्र में है, लेकिन उन्हें भागने नहीं दिया जा रहा है और उनको तहस नहस किया जा रहा है।